Students, can you tell me, if someone asks you that what determines the genetic information of an organism? I hope your answer will be that it is the sequence of bases in DNA of that organism which determines the genetic information of that person. Or, in other words, you can simplify it by saying that genetic makeup of an organism lies in the DNA sequence of that person. And we all know, or we all notice, that two individuals are not same on the planet Earth. And if two individual differs, then their DNA sequences should also be different. At least at some places it should be different for sure. So these assumptions led to the quest of the finding out the complete DNA sequence of human genome. So with the establishment of genetic engineering, or you can say genetic techniques, when came into the picture, then it will be very easy for the biologist to isolate or clone the piece of DNA, and they can also amplify the fragments of DNA so that they can understand, or they can sequence the genes. दैट मीन्स इन शॉर्ट, आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट साइंटिस्ट को ये लगा कि किसी इंडिविजुअल की कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए यू मस्ट नो द फंक्शन ऑफ ईच जीन. आपको हर जीन का फंक्शन पता होना है. तो दैट मीन्स आपको हर जीन को फंक्शन को पता करने के लिए यू हैव टू स्टडी द क्रोमोसोम्स एज वेल एज द gene in a sequence pattern. And for all these things, there is a project known as Human Genome Project came into the existence, and this is a very ambitious project. That means the sequencing of human genome. It is launched in year 1990, and it is also known as a mega project. Why you call them mega project? Because you know that how much amount of manpower is involved in this process, and how extensive this process is it is. क्योंकि इसमें आपको पूरे ह्यूमन सेल्स के अंदर जितना भी जीन है उन सारों को सीक्वेंस करना है. दैट मीन्स उन सारों को स्टडी करना है. तो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क. एंड आपको पता है एक सेल का ही डीएनए इतना ज़्यादा है, और ह्यूमन बॉडीज़ में कितनी सेल हैं. तो अब इसके लिए इतने सारे सेल्स को स्टडी करना इज़ नॉट ओनली अ चैलेंजिंग टास्क, बट ऑल्सो टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑल्सो. क्योंकि आपने स्टडी कर लिया ह्यूमन जीनोम को, देन ऑल्सो यू हैव टू स्टोर देम फॉर फ्यूचर. तो इसके लिए आप कोई रिटन काम तो कर नहीं सकते कि यू हैव टू राइट सर्टेन बुक्स, और कुछ आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, कुछ फाइल्स बनाएंगे. इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारा आपको इसके अंदर जो है डॉक्यूमेंटेशन करना होगा पूरी ह्यूमन बॉडी का. इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड फॉर दैट यू रिक्वायर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड कीपिंग ऑल दीज थिंग्स अबाउट अ सिंगल ह्यूमन जीनोम फ्रॉम सेल का. इवन मैं अगर बात करूँ तो enormous amount of data is expected to be generated, and also for that you need the high speed computers. That means computational device, not only computers, और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं for the data storage, and sometimes if you need to retrieve them, तो उसके लिए भी retrieval के लिए, analysis के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं यू कैन से बहुत ही एडवांस्ड है ना, बहुत ही एडवांस किस्म के आपको इंस्ट्रूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है. एंड HGP आर वेरी मच एसोसिएटेड विद द new branch of the biology that is called bioinformatics. So what is bioinformatics? Bioinformatics is a branch of biology where with the help of computers and other devices you store the things which are of the biological in nature. तो उनके उसके लिए वो branch है bioinformatics. That means computers are dealing with the biological things. नाउ कम टू द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ गोल ऑफ HGP. ये एज सच आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ HGP. तो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ HGP विच आर गिवन इन योर बुक. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन बाई वन व्हाट आर दे. फर्स्ट पॉइंट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द जीन्स, ह्यूमन जीन्स. तो इन ह्यूमन DNA जितना भी जीन्स है उनको आइडेंटिफाई करना. दिस इज़ द मेजर गोल ऑफ द HGP, एंड दीज जीन्स आर अराउंड टू 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA इज़ प्रेजेंट. तो उन सभी को आइडेंटिफाई करना कि विच आर ऑफ आवर यूज़, तो उनको आइडेंटिफाई करना इज़ द वन थिंग. अनदर इज़ द डिटरमिन द सीक्वेंसेज ऑफ 3 billion केमिकल बेस पेयर्स. अब यू नो दैट जीन्स आर मेड अप ऑफ बेस पेयर्स. तो उन बेस पेयर्स को भी स्टडी करना, डिटरमिन करना वो किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं वो देखना. एंड दिस इज़ अबाउट 3 billions.
बेस पेयर्स हैं, उन सारों को ह्यूमन डीएनए के अंदर जो है उनको आइडेंटिफाई करना, डिटरमिन करना उनके सीक्वेंस को। नेक्स्ट इज़ द स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटाबेस। स्टोरेज ऑफ द डेटाबेस मीन्स जो भी आप कलेक्ट करोगे इन्फॉर्मेशन, सो यू हैव टू स्टोर इट, क्योंकि उसको अगर आप फ्यूचर के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इट रिक्वायर्स द स्टोरेज। एंड देन फॉर दैट यू नीड द इम्प्रूव्ड टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। आपको टूल्स चाहिए जो डेटा एनालिसिस को बहुत ही ईजिली और बहुत ही एक्यूरेटली कर सकें। तो फॉर दैट यू नीड द specific tools in form of computers and all that. And last one is that transfer related technology to the sectors such as industries. तो अब जो भी आपको टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अदर सेक्टर्स को भी ट्रांसफ़र करनी है, सो दैट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसको फुलफ़िल कर सकें। तो ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को भी ट्रांसफ़र करना इसका एक गोल है। एंड ऑल्सो एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज़। जब भी कभी ह्यूमन की कोई चीज़ होती है जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं, तो देयर आर सर्टेन एथिकल इशूज़, सर्टेन लीगल इशूज़ उन और सोशल इशूज़ भी होते हैं, उनको भी ध्यान रखना होता है। क्योंकि वंस यू नो द जीन ऑफ अ पर्सन, यू नो एवरीथिंग, आपको उसके बारे में सब कुछ पता है कि क्या उसको डिजीज़ हो सकते हैं, क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको पब्लिकली नहीं कर देनी है, पब्लिक नहीं कर देनी है, सो दैट कि उसको कुछ प्रॉब्लम फेस हो। तो इसलिए वो बहुत सारे लीगल इशूज़ एंड सोशल इशूज़ भी आते हैं, तो उनको भी एड्रेस करना इसका गोल है। तो दीज आर द गोल्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एंड द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज़ अ 13-year प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट। एंड ऑल्सो वेलकम ट्रस्ट विच इज़ ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम की है वेलकम ट्रस्ट। उसने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। एंड साथ साथ और भी कुछ कंट्रीज से दे ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड, like Germany, France, Japan, China. So all these countries are come together and they work on jointly on this project, and this project was completed in 2013. So after knowing about the DNA, the DNAs and the genes, how they functions, and what in which sequence they are present, and what are the various variations which are present into the DNA among various individuals, they can lead a very you can say a revolutionary ways to diagnose and treat the several types of thousands of diseases, disorders and other ailments which are present into the human beings. तो वो सारी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज वंस यू नो अबाउट द ईच एंड एवरी जीन, तो ये बहुत ईजी है आपके लिए द प्रेडिक्ट कर पाना कि उस जीन की फंक्शनिंग कैसे होती है, उस जीन की वजह से किसी भी या किसी भी जीन की वजह से जो भी ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डिजीज़ेज होती हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो माल फंक्शनिंग्स होती हैं, तो वो जीन्स को किस जीन की वजह से होती है। तो जब आप जीन के उनको जान जाओगे, मोड ऑफ एक्शन को जान जाओगे, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू ट्रीट द यू कैन से रूट ऑफ दैट डिसऑर्डर। क्योंकि अभी तो आपको केवल डिजीज़ पता होती है, on the basis of which आप symptoms देख के you give them medicine for that, and for that purpose you have to take the medicine for sometimes for the lifelong। आपको वो मेडिसिन लेनी पड़ती हैं बिकॉज यू वांट टू क्योर दैट थिंग। लेकिन जब आपको पता है कि ये डिजीज़ इस जीन की वजह से होती है एंड आप उस जीन को ही ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हो, तो फिर आपको आगे फर्दर वो डिजीज़ होगी नहीं, क्योंकि उस जीन को ही आपने फिनिश कर दिया। तो यू डू नॉट नीड टू टेक द मेडिसिन लाइफ लॉन्ग। तो ये बहुत एक ह्यूमन जो हेल्थ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए या हेल्थ केयर के लिए बहुत ही एक एडवांस चीज़ है। तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को और उनको हम चाहें तो करेक्ट भी कर सकते हैं। सो बिसाइड्स गिविंग द क्लू टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी, इट इज़ ऑल्सो नॉन गुड फॉर नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ना, केवल इंसानों के लिए ये नहीं कि हम लोगों के लिए ही ये बहुत ही यूज़फुल है, इट इज़ ऑल्सो फॉर अदर एनिमल्स ऑल्सो और प्लांट्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अब तक की जो हैं वो नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स, बैक्टीरिया ईस्ट सियानोरैबिडिस एलिगेंस जो कि एक निमेटोड है नॉन पैथोजेनिक, उसका, और ड्रोसोफिला यू हैव स्टडीड दैट फ्रूट फ्लाई, एंड प्लांट लाइक राइस प्लांट एंड एरबिडोप्सिस प्लांट, इनका सबका भी जीन सीक्वेंस जो है वो किया जा चुका है। तो दीज आर ऑल नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, बट देयर डीएनए सीक्वेंस कैन लीड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटीज़। उससे आप जान सकते हैं कि उस जीन की नेचुरल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ राइस और सम अदर क्रॉप, तो जब तक आपको जीन की कैपेबिलिटीज़ का नहीं पता होगा आप इसको एक्सप्लॉइट कैसे करोगे। तो देर आर सो मैनी थिंग्स विच यू कैन इम्प्रूव by knowing this, and this knowledge is used in solving so many problems in various fields like healthcare, agriculture, energy production,
इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन, इन सब चीज़ों में आप उसका फिर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप जीन के बारे में जान गए हैं तो, कि उसके अंदर हम उससे क्या क्या और यूज़ जो है कर सकते हैं। नाउ कम टू द मैथडोलॉजीज़, व्हाट आर द वेरियस मैथडोलॉजीज़, क्योंकि जीन को सीक्वेंस करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को हमें यूज़ करना पड़ता है। तो देयर आर बेसिकली टू मेथड्स, वन इज़ नोन एज एक्सप्रेस सीक्वेंस्ड टैग्स, दिस इज़ गिवन हेयर, express sequence tag, and second is the sequence annotation. By these two methods we can सीक्वेंस द जीन्स, है ना। सीक्वेंस द जीन्स का मतलब जीन्स को हम लाइन अप करके, जैसे होता है ना कि उनको समझना, उनको पढ़ना एक सीक्वेंस में, वो हम कर सकते हैं टोटल ह्यूमन जीनोम का। तो दीज देर आर टू अप्रोचेस, and for that suppose if we are talking about the expressed sequence tags, or you can say ESTS, what happens in this, इस अप्रोच में हम जो करते हैं सबसे पहली चीज़ वो, वी आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA, उस सारे जीन्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं जो RNA के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट मीन्स विच DNA विच एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ RNA एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विच इज़ अ नॉर्मल टास्क, है ना। वो उस वाले को, तो पहले उनको सीक्वेंस करोगे, उन सारे जीन्स को सीक्वेंस करोगे आप जो सारे जीन्स जो हैं वो RNA में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस मेथड इज़ नोन एज expressed sequence tags, and another method is which is known as sequence annotation. उसमें क्या करते हैं, उसमें simply you just sequence the whole set of genome which is present into a cell, either they have coding segments or they have non coding segments, सबको आपने एक साथ sequence कर लिया, and later on you assign the different regions in the sequence with functions, तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। मतलब सारे को एक साथ आपने कर लिया और बाद में आपने उसको देखा कि किसको कहाँ पे रखना है, क्या करना है, जबकि पहले वाले में सिर्फ उन्हीं को आप सीक्वेंसेस कर रहे हो जो RNA में ट्रांसलेट होते हैं, दैट मीन्स यू हैव सेलेक्टेड द कोडिंग सीक्वेंसेज। इसके अंदर आपने क्या किया, सारों को ले लिया, वो चाहे कोडिंग थे चाहे वो नहीं थे, वो बाद में आपने डिसाइड किया कि किसको मुझे रखना है और किसको नहीं रखना है। And for this sequencing, one more important thing, that the total DNA of a cell is isolated for this purpose, है ना। इसको isolate करना पड़ेगा एक सेल का DNA, and then you can convert them into random fragments in of relatively smaller size for the study। तो क्योंकि DNA तो बहुत बड़ा होता है, तो आप सारा DNA एक साथ तो स्टडी नहीं कर सकते, तो you need the fragments of the DNA, and for that fragments आपको कुछ टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, विच वी हैव नॉट स्टडीड येट, इन फ्यूचर हमें पढ़नी है। तो बिकॉज DNA इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर, यू हैव टू take some measures because there are certain technical limitation in sequencing then, so very long piece of DNA can't be sequenced properly, so you have to clone them, you have to break them into pieces, and पहले टुकड़ों में उनको fragments में, if you will study in the topic of biotechnology that suppose ये बड़ा सा DNA है, तो you have to make them fragments, ये छोटे छोटे fragments बनाने हैं और इसके बाद में इनको clone करना है, that means multiple copies आप इसकी बना सकते हो with the help of host and with the help of vectors। the cloning results into the amplification of each piece, मतलब अगर आपके पास केवल एक जीन है, इसकी आप क्लोनिंग कर दोगे तो इससे आप thousands of copies बना सकते हो बिल्कुल सेम जीन्स की, तो then it will be easy for you to study and to sequence them। तो इसलिए इनके लिए इस केस में दैट मीन्स जो मैथडोलॉजीज़ हैं इनमें आपको दो वेक्टर्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स द वेरी कॉमनली यूज्ड होस्ट एंड वेक्टर्स, बोथ आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट। तो द वेरी कॉमनली यूज्ड होस्ट वर बैक्टीरिया एंड ईस्ट, whereas the vectors are called BAC, BAC, and YAC, YAC। तो these are the two vectors and two host। what are the host are the, one is bacteria, another is the yeast, तो these are the host, ये दोनों host हैं। and if we talk about the vectors, तो then it is YAC, YAC, yeast, artificial chromosome, another is the BAC, bacterial artificial chromosomes। तो these are the vectors, ये दोनों vectors हैं, तो इनकी help से you can clone the DNA। clone the DNA means you can make several copies of the similar copies, or you can say identical copies of the same part of DNA, and the fragments which you are going to sequence using automated DNA sequences
that worked on the principle of a method developed by Frederick Sanger. Frederick Sanger is the biologist who gave the method कि कैसे इन fragments को किस तरह से sequence करना है वो उन्होंने बताया था. And Sanger is also given the credit for developing the determination of developing the method to determine the amino acid sequence in the proteins. तो these sequence were arranged on the base of some overlapping regions present in them. तो वो techniques हैं कुछ, and we required these specialized computer based programs so that we can easily sequence them, क्योंकि ये कोई हाथ से तो हम कर नहीं सकते, manually it is not possible, तो we required that specialized computer based program. तो उन programs में हमें ये करने पड़ते हैं special techniques के through, and by that you can sequence all the genes comfortably. So the sequence of chromosome 1 was completed in May 2006, और बाकी के जो हैं अभी वो चल रहे हैं इनका प्रोसेस, एंड 2003 में ये बेसिकली कंप्लीट भी किया जा चुका है कि जो डीएनए का था सीक्वेंसिंग प्रोसेस. एंड चैलेंजिंग टास्क इसके अंदर बहुत सारे आए जो जेनेटिक फिजिकल मैपिंग के लिए है. बहुत सारी चैलेंजिंग चीज़ें थी, लाइक जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम, इसको भी करना एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी. बट विद द हेल्प ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, विच वी हैव स्टडीड in the previous chapter, and with the help of restriction endonuclease enzymes and all these things, they get success in sequencing the human genome. And this is all for today. In next lecture we will discuss about the features of the human genome.